सो वेलकम एवरीवन। जो भी इस क्लास में आप लोग आए हो, जो भी इसको यूट्यूब से भी देख रहे हो, सबको मैं वेलकम करता हूँ। माय नेम इज सुभाष कार्तिक। आई एम डिजिटल कम्युनिकेशन कोच एंड अ लाइफ कोच ऑल्सो। सो गाइस, इमोशन इमोशन जज्बात, in Hindi we say जज्बात. When emotion comes, we forget everything. Good if we have a पॉजिटिव इमोशन. अगर पॉजिटिव इमोशन है तो अच्छी बात है. We smile, we laugh, we feel romantic. That is also a positive emotion. But when we have negative emotion, the worst emotion is anger, गुस्सा होना. I don't know out of you how many people you become angry. Because uh, we tend to become angry. हम लोग नहीं चाहते हुए भी गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी. Not only that, some people they have jealousy. जब उनको दिखता है some people are better than me, they feel jealousy. So guys, these anger, jealousy, what are these? These are negative emotion. And negative emotions are strong emotion. Negative emotions are strong emotion. And that is the reason our today's topic is dealing with strong emotion. अपने strong emotion से आप कैसे deal करोगे? So guys, just I want to see you all before I start. So if you see this lesson, अगर आप ये lesson को end तक देखोगे, you will be able to manage your anger. मैं बार बार बोल रहा हूँ managing anger. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गुस्सा ही नहीं होगा. You will not become angry. It will not be the case. You will become angry and you will feel that no. Stop, Subhash. I should not be. So this is also a big thing, big achievement. If you can be so, logical to yourself, if you can talk to yourself that no, Subhash, I should not be angry, then I think you can save yourself, because anger kills. Anger सिर्फ मारता है और कुछ नहीं करता. Anger से आज तक किसी का कुछ भी भला नहीं हुआ है. Anger is danger. We call it anger is danger. So when a mood against someone arises, do not place it on the person in questions, but remain centered. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. So इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपका मूड बिगड़े किसी के ऊपर, जब भी आपको एंगर हो आए आपके लाइफ में, यू फील दैट यू आर बिकमिंग एंग्री, यू कीप योरसेल्फ, यू रिमेन योरसेल्फ सेंटर्ड. आप अपने आप को एकदम अलग कर दो, अकेला कर दो. That is very, very important. Remain calm, grounded and centered. ये किस लिए बोला जा रहा है, उसका एक रीजन है, और ये रीजन मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूं. हम लोग को क्या होता है, जब भी हम लोग एंग्री होते हैं ना, when become angry, and कोई अगर बाई चांस मेरे सामने आ जाए ना, उसको मैं मार दूं, we think like that, we try to hit that person. A person to छोड़ो, some people they take out their mobile and they throw and break the mobile also. Mobile छोड़िए, some people they bang the door so hard, इतना जोर से दरवाजा बंद करते हैं गुस्सा से. Some people they throw their speck, जो भी मिलता है उसको सामने ना, they throw it. सोचो, मतलब when people they become angry, they forget everything. वो चाहे सीईओ हो या चौकीदार हो, बड़े से बड़े इंसान भी ना एंगर को झेल नहीं पाते या इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते. गाइज, आई नो यू वांट टू बी अ कम्युनिकेटर. आप लाइफ में एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, मगर पता है जब आप गुस्सा हो जाओगे ना, आप कितना भी अच्छा कम्युनिकेट करो, आपकी बोलती चेंज हो जाएगी. यू विल नॉट बी सो स्वीट. सो इसीलिए योर इमोशन इज बेसिकली अफेक्टिंग योर कम्युनिकेशन. आप लोगों से कैसे बात करते हो, your emotion and your psychology plays a great role, and that is the reason this anger management is important for you.
So don't think that आप तो communication सोच के आए थे. You are in the right place. You cannot communicate effectively if you are having anger inside your mind. So guys, it is a very important lesson which you are learning today, which you are going to learn today. इसको अच्छे से समझिए. If you feel hate towards someone, you forget yourself completely in your hate. Only that person become your object. जब आपको गुस्सा आता है ना, आप भूल जाते हो कि you know आप कौन हो. आपका टारगेट बन जाता है वो इंसान है, उसी के बारे में सोचते हो. यू वॉन्ट टू हर्ट दैट पर्सन, यू वॉन्ट टू ऑलवेज थिंक अबाउट दैट पर्सन. यू फॉरगेट योरसेल्फ. आप अपने शेड्यूल भूल जाते हो. आप में से बहुत जन है जो खाना तक नहीं खाते. when you become angry, when you don't eat, it affects your personality, it affects your health. So guys, anger is danger. Why it is being said? Because when you become angry, you change your life in a negative way. हम सब चेंज करना चाहते हैं अपने लाइफ को, लेकिन नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली. एंड एवरी सेकेंड यू बिकम एंग्री, आप अपने को पीछे लेके आते हो और बैक लेके आते हो. योर मेंटली यू बिकम इल. आप दिमागी तौर पे ना इल हो जाते हो, जिसको समझा नहीं सकता कोई. सी आई एम नॉट टेलिंग, किसी स्पेसिफिक इंसान को मैं नहीं बोल रहा हूं. आई एम टेलिंग एक किसी को बोल रहा हूं जिसके लाइफ में एंगर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. आई डोंट नो हु इज ही और हु इज शी, वो आप देख लेना भाई. बट आज जो हम लोग सीखेंगे वो आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. आई एम डूइंग इट. मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं एंड आई फील सो गुड, आई फील सो कूल. ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता है, बट आई मैनेज माई एंगर. एंगर आता भी है तो आई मैनेज माई सेल्फ. इट्स ओके, फाइन, फाइन. So that is very important, that you stop yourself when you become angry. You feel love towards someone, you forget yourself completely. Only that person becomes your object. ये भी कुछ खास नहीं है जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो. अभी हमने क्या बात किया कि when you become angry, जब आप गुस्से में होते हो, किसी को नफरत करते हो, आप भूल जाते हो अपने आप को. और सेम होता है जब आप किसी को बहुत प्यार करते हो. When you love someone, you forget yourself. That person becomes your object. I have seen many people, मैंने बहुत कपल्स को देखा है, वो लोग बात करते हैं, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता. वाह 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 वाह. ओके, और भी डायलॉग्स हैं, जैसे मैं तुमसे भी, खुद से भी ज्यादा मैं तुम पे भरोसा करता हूँ. माय गॉड, देन यू आर गॉन. If you trust somebody else, you do, beyond your trust towards yourself, अगर आप खुद से भी ज्यादा दूसरे को भरोसा करते हो, आपका लाइफ खल्लास हो जाएगा बहुत जल्दी. कैसे, आई एम टेलिंग यू दिस इज, मैं आपको वो टिप्स नहीं देना चाहता कि जब आप गुस्सा हो तो 10 से 1 गिनो. हम कोशिश कर रहे हैं कि आप गुस्सा ही ना हो, तो 10 गिनने का जरूरत ही ना पड़े. गुस्सा आए, अपने आप चेंज हो जाए, अपने आप कूल हो जाए. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लेवल. आई एम नॉट टेलिंग कि गुस्सा होगा तो क्या क्या करना है. ऐसा कुछ करो जिससे गुस्सा आए और सटक से इट गोज ऑफ. वही मैं बोल रहा हूं, ये दोनों चीज ही डिफरेंट है. जब हम गुस्सा होते हैं, वी फॉरगेट एवरीवन. ये गलत है. जब हम लोग किसी को प्यार करते हैं, हम लोग सबको भूल जाते हैं, खुद को भी भूल जाते हैं. वो इंसान इंपॉर्टेंस हो जाता है, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में सब कुछ, सपना भी उसी का देखते हैं. एवरी टाइम वी थिंक अबाउट दैट पर्सन. दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. यू नो व्हाई I'll tell you why. मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं. See this. You project your love or hate or whatsoever upon someone. You forget completely the inner center of your being. The other becomes the center. When you love someone, you forget yourself.
You feel that person is everything to me. Even when you hate someone, you do the same thing. आपको लगता है कि वो इंसान को मारना है या गाली देना है या उसको इंसल्ट करना है, you think about that person, you forget yourself. Think about it. This is wrong. When hate arises or love arises or any mood for and against anyone, do not project it on the person is in question. Remember, you are the source of it. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम टेलिंग यू, प्लीज सब लोग सुनो यहाँ पे. When hate arises or love arises or any mood for or against anyone, do not project it on the person. Remember, you are the source of it. I'll tell you what is this. हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि नॉर्मली लोगों को क्या लगता है, मैं जब उसको देखता हूं ना मैं गुस्सा हो जाता हूं. मैं जब मिस्टर शर्मा को देखता हूं ना मैं गुस्सा हो जाता हूं. When I see someone, then I become very furious. I become angry. I don't know, आपके लाइफ में ऐसा कोई है जिसको देख के आप गुस्सा हो जाते हो? ऐसा कोई है क्या? I really want to see अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है जिसको देख के आप गुस्सा हो जाते हो. So एक बार थम्स अप दिखाना मेरे को, अपना वहां पे स्टिकर है तो थम्स अप दिखाइए. Okay, some people raising hands, मेरे अच्छा इतने मतलब in your life you have someone जिसको देख के आप गुस्सा हो जाते हो. बस, अब बाकी लोग को गुस्सा नहीं आता, सिर्फ 4-5 लोगों को ही आता है. ओके ओके, सो यू हैव पीपल. अब एक बात आप सोचिए, जिन और बहुत लोग शायद नहीं भी बोल रहे हैं. एक बात सोचिए, अगर मुझे किसी को देख के गुस्सा आ रहा है तो गुस्से का सोर्स कौन है, वो है या मैं हूं? थिंक अबाउट इट. नो नीड टू टेल मी, आप खुद सोचो. अगर आपको सपोज किसी आपको, मतलब जो भी सुन रहा है, मैं उनको बोल रहा हूं, मैं अगर मैं आपको देखकर मुझे गुस्सा आता है तो क्या आप मेरे एंगर के सोर्स हो कि मैं खुद सोर्स हूं? दिस इज माय क्वेश्चन. अगर आपको लगता है नहीं सर मैं सोर्स हूं, तो आप गुस्सा क्यों होते हो? जब आप ही सोर्स हो, आप ही रीजन हो, तो गुस्सा क्यों होते हो? और अगर आपको लगता है नहीं सर वो इंसान सोर्स है, ऐसा किसी को लगता है कि आपके गुस्सा होने का कारण कोई और है? इज देयर एनीवन हु थिंक्स लाइक दैट? एक मैसेज आया है, वो लिखे अगर अचानक से सामने आ जाए तो, मतलब वो इंसान अगर आ जाए तो आपको गुस्सा आ जाता है, राइट? सो मतलब आप बोल रहे हो कि आपके गुस्से का कारण आप नहीं हो, somebody else है. यू आर नॉट द पर्सन जिसको गुस्सा हो रहा है. बेसिकली जो इंसान आप जिस इंसान को देख रहे हो, whenever you see that person you becomes angry. You are telling that. जब कोई झूठ बोले, जब कोई जब कोई बिहेव करे, आपके जैसा बिहेव ना करे, you become angry. ओके, लेट्स गो. लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपको गुस्सा अगर आ रहा है या किसी पे प्यार भी आ रहा है ना, तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है. आप अच्छे हो इसीलिए आप सामने वाले को प्यार करते हो. आप यू हैव एंगर एंड दैट इज द रीजन यू आर एंग्री. आई एम अगेन रिपीटिंग. You become angry not because that person is bad. You are becoming angry because you have anger inside you. You have anger. So source is not that person, source is you. I can prove it. ऐसे नहीं बोल रहा हूं, I will prove it. Prove this. कहानी को आगे चले थोड़ा सा. सुना, अब से ये बोलना बंद कर दो किसी को कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत तुम में बहुत प्यार है, तुम में बहुत भरोसा है. ऐसा नहीं है. हम अच्छे हैं इसलिए हमको सब कुछ अच्छा लग रहा है.
इट इज मी हु इज गुड, इसीलिए मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे सब पे विश्वास आ रहा है, बिकॉज आई एम गुड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई विल कम फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, डोंट वरी। आप अपने क्वेश्चन को नहीं लिख के उसको साथ में रखे। आई विल I love you. The ordinary feeling is you are the source of my love, but that is not really so. I am the source. You are just a screen on which I project my love. Guys, I am the source of love. सामने वाला है स्क्रीन जहां पे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं अपना प्यार, प्रेजेंट कर रहा हूं अपना प्यार। लेकिन सोर्स मैं हूं, सोर्स वो नहीं है, वो स्क्रीन है। I am the source. I am the source of love. I am the source of jealousy. I am the source of anger. That person is a screen. वो person important ही नहीं है, वो person का कोई गलती नहीं है। I am the source. You are just a screen. You are just a screen जहां पे मैं अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं। आई नो आप लोग में बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हो। अभी थोड़ी देर में आपका कंफ्यूजन चला जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि आपके गुस्से का कारण आप हो। एटलीस्ट आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। मैं जब तक प्रूव ना करूं इस बात को, तब तक यही सोचिए कि ओके चलो मान लिया मेरा गुस्से का कारण मैं हूं। थिंक अबाउट इट। ओके, नाउ सी दिस पिक्चर। ये पिक्चर से थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। ये है प्रोजेक्टर और ये है स्क्रीन। विच इज द सोर्स एंड विच इज द स्क्रीन? सोर्स कौन है? प्रोजेक्टर सोर्स है, प्रोजेक्टर से लाइट जाता है। और स्क्रीन, स्क्रीन में लाइट जा रहा है। तो सोर्स प्रोजेक्टर है, स्क्रीन सोर्स नहीं है। पहले तो ये समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द प्रोजेक्टर इज द सोर्स एंड द स्क्रीन is receiving that. Screen is not the source. चलो ये समझ गया तो बाकी सब समझ जाएंगे। तो projector is the source and the screen is the screen. You are just a screen. I project my love on you. अच्छे से सुनिए इस चीज को। I say that you are the source of my love. This is not the fact, this is the fiction. आप स्क्रीन हो, मैं आपको प्यार करता हूं, तो मेरा जो प्यार का सोर्स है वो मेरे अंदर है। आप स्क्रीन हो जहां पे मैं प्रोजेक्ट करता हूं अपना प्यार। सो ये मत कहना कभी कि तुम प्यार का बरसात हो या तुम प्यार के सोर्स हो। ये सब बोलना बंद कीजिए, बिकॉज प्यार के सोर्स आप खुद हो, नॉट एनीबडी एल्स। सेम है जब गुस्सा होते हैं उसमें भी। जब हम गुस्सा होते हैं तो गुस्से का जो सोर्स है वो सामने वाला नहीं है, सामने वाला स्क्रीन है। मैं सोर्स हूं। ये जो गुस्सा है ना वो मेरे अंदर है। एंड दैट इज द रीजन आई बिकम एंग्री। सामने वाला तो स्क्रीन है जहां पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं अपने गुस्से को। I draw my love energy and project it onto you. In that love energy projected onto you, you become lovable. हम क्या बोलते हैं? तुम बहुत लवेबल हो, तुम बहुत प्यारी हो। गलत है। मान लीजिए सुनने में खराब लगेगा, ये गलत है, सरासर गलत है। सब लोग अपने डायलॉग्स को चेंज कर देना आपसे। तुम मेरे प्यार के सोर्स नहीं हो। आई एम द सोर्स ऑफ माई लव। आई एम द सोर्स ऑफ माई एंगर। इफ आई एम गुड, I will see everything in a good way. If I have the anger, then I will project my anger to anybody else. So source is me, चाहे गुस्से का सोर्स हो या प्यार का सोर्स हो, सामने वाला नहीं है। अभी भी बहुत लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। डोंट वरी, आई विल कम टू योर क्वेश्चंस। You may not be, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे से सुनिए इसको। You may not be lovable to someone else. You may be absolutely repulsive to someone else.
आप जिसको लवेबल बोल रहे हो, अच्छे सुनिए, आपको लग रहा है कि सामने वाला बहुत प्यारा है इसलिए आपको वो प्यारा लग रहा है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है सामने वाला जो आपको प्यारा लग रहा है उस इंसान को कोई और नफरत करे। ट्राई टू लिसन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सपोज ये है इंसान, ये मोबाइल मेरा एक इंसान है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन कोई तो होगा जिसको ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये सोर्स कैसे हुआ? अगर सोर्स होता है ये तो सबको अच्छा लगना चाहिए था ना भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इफ दिस इज द सोर्स ऑफ लव, इफ दिस इज द सोर्स ऑफ एंगर, अगर आप सोचो सपोज ये इंसान है जिसको देख के मेरे को गुस्सा आ जाता है, तो मेरे को लगता है कि ही इज द सोर्स। बट ऐसा भी तो हो सकता है इसको देख के आपको गुस्सा ना हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको देख के मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे लगा कि गलती इसकी है, ये खराब है, लेकिन हो सकता है इसको देख के कोई और गुस्सा ना हो। सोर्स इज नॉट दिस इज द स्क्रीन, द सोर्स इज माई सेल्फ। ऑलवेज रिमेंबर दैट। Source is not the other person, the source is my own self. I'm projecting my anger in that person. See, this is a very sensitive talk. You need to be, you need to understand and you need to think again. If you are the source of love, then everyone will love, feel loving towards you, but you are not the source. If you are the source of love, then everyone will feel loving towards you, but you are not the source. एक चीज देखिए यहाँ पे, देर इज अ कैंडल, ये कैंडल जल रहा है, तो चाहे मैं इस कैंडल में हाथ दूं, मेरे हाथ जल जाएंगे, चाहे बलराम जी दे तो उनका भी हाथ जल जाएगा, या मिसेस नीरा सूद दे तो उनका भी हाथ जल जाएगा, पूनम दे उसका भी हाथ जल जाएगा, छौंदा देगी तो उसका भी हाथ जल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द सोर्स, द कैंडल इज द सोर्स। लेकिन अगर देखो, आप लोग शायद मुझे पसंद करते हो तो इसमें तो आई एम गुड वाली बात नहीं है, बिकॉज समवेयर यू हैव समथिंग गुड इनसाइड यू जो मेरे को अच्छा से देख रहा है। हो सकता है कोई इंसान ऐसा भी हो जो मेरे को नफरत करता हो। सो आई एम नॉट द सोर्स। अगर आप मुझे पसंद कर रहे हो, इसका मतलब है कि समथिंग नाइस इज इनसाइड यू फॉर मी। सो सोर्स इज यू योर सेल्फ, नॉट मी। आई एम द स्क्रीन। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो मुझे नापसंद भी करते हैं। थिंक अबाउट इट। जिसको देखने से आप गुस्सा करते हो, उसको देखने से बहुत जन शायद प्यार भी करते होंगे। तो वो गुस्से का कारण कैसे हो गया? मे बी यू हैव द एंगर इनसाइड यू। थिंक ऑन इट। इट इज नॉट इजी। अगर आप एंग्री हो जाते हो तो एक एक दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको हेल्प नहीं करेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। आई प्रोजेक्ट लव, देन यू बिकम लवेबल। आप लवेबल नहीं हो। जब मैं अपना प्यार आपको दे रहा हूं, व्हेन आई एम शोइंग माय लव टू यू, देन यू आर बिकमिंग लवेबल। Someone projects hates, then you become repulsive. और कुछ लोग हैं जिनको कोई फीलिंग होता नहीं। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लेवल ऑफ पीपल। सो गाइज, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग? तो हो क्या रहा है यहाँ पे? वी आर प्रोजेक्टिंग आवर ओन मूड्स अपॉन अदर्स। हम लोग अपना मूड्स को शो कर रहे हैं हमेशा। इसलिए नहीं, आप अगर किसी को देखने से आपको गुस्सा लगता है, that person is not responsible. You are responsible because you have anger inside you. This is what I have been telling अभी तक। you know, yeah, एक होता है गुस्सा करना और एक होता है गुस्सा दिखाना। जब आप गुस्सा होते हो, इट अफेक्ट्स योर बॉडी, इट अफेक्ट्स योर मेंटालिटी।
तो गुस्सा होना गलत है, लेकिन आप किसी को गुस्सा दिखा रहे हो कि कोई काम वो कर दे, तो उसमें आप गुस्सा हो नहीं रहे हो, आप दिखा रहे हो, दैट इज डिफरेंट। आज अगर मैं अपने बच्चे को गुस्सा से बोला, डू दिस वर्क, आई एम वेरी एंग्री, आई एम नॉट एंग्री, आई एम शोइंग दैट आई एम एंग्री, आई एम नॉट एंग्री। वो ठीक है, आप एक्टिंग सोचो जो भी, मैं अपना एंगर को दिखा रहा हूं, बट आई एम नॉट एंग्री। मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपने बच्चों को एंगर दिखाऊं तो वो काम करेगा, लेकिन उसके लिए मुझे एंग्री होने की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल होते हुए भी ऐसा साउंड कर सकता हूं। आई एम टेलिंग दैट। तो गुस्सा होना और गुस्सा दिखाना दोनों में, तो अभी हम लोग गुस्सा दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि गुस्सा होना। गुस्सा जब आए, देखो हम लोग नॉर्मल लाइफ में है तो वी मे बिकम एंग्री, but what I am telling, when we become angry, you should tell yourself, oh my god, I am the source of my anger. No, 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 I'll not be angry. आप खुद एंग्री हुए और खुद को ही मैनेज कर दिया। मैं उस सिचुएशन में आपको लाना चाहता हूँ। एक 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 बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज वेरी फेवरेट, यू नो। आज एक इंसान है, सपोज वो इंसान का बच्चा डेथ कर जाता है, उसका बच्चा मर जाता है, तो वो जब बच्चे की डेड बॉडी लेके जाता है तो उसे वो चांद दिखता है, ऊपर आसमान में चांद दिखता है, तो वो चांद को देखते बोलता है, ये चांद मेरे लिए बहुत, यू नो, बहुत बुरा चांद है, ऐसा चांद, इतना इतना खराब चांद आज तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि उसके हाथ में उसके बेटे का डेड बॉडी होता है। और उसी दिन उसी चांद को कोई कपल देखता है, जब वो कपल हाथों में हाथ दे के सी बीच में घूमता है, उसी चांद को देखकर वो कपल बोलता है कि आज का चांद कितना अच्छा है। सोर्स इज नॉट द चांद, चांद इज द स्क्रीन। चांद सोर्स नहीं है, हमारी मेंटल स्थिति सोर्स है। जब मैं बहुत दुख में हूं तो उस समय मुझे चांद अच्छा नहीं लगता है, और जब मैं काफी रोमांटिक हूं तो वही चांद मुझे अच्छा लगता है। तो चांद इज नॉट द प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम, आई एम द सोर्स। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने जो बोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। See, that is why if you are on honeymoon, the moon looks beautiful, miraculous, wonderful. It seems that the whole world is different. इतना अच्छा चांद है. On the same night, just for your neighbor, this miraculous night may not be existent. His child has died. Then the same moon is just sad and intolerable. वही moon intolerable हो जाता है. तो सोर्स ये इंसान है, उसकी उसकी मनोस्थिति, उसकी मेंटल कंडीशन इज द सोर्स, नॉट द मून। मून इज जस्ट द सोर्स, moon is not the, source, moon is just the screen, sorry. I am the source, I am not able to manage it. So guys, is the moon the source? No. Is the moon just a screen? Yes. You are projecting yourself? Yes. When a mood against someone or for someone arises, do not place it on the person in question, on the object in question. Remain centered. हमने इसी स्लाइड से स्टार्ट किया था, अब हम फिर उसी स्लाइड में आ गए। बार बार बोलते हैं कि जब आपको बहुत गुस्सा आए, ठीक है, प्यार तो पॉजिटिव है तो प्यार की बात नहीं करते हैं, चलो, जब हमको बहुत गुस्सा आए ना, तो इट इज बेटर कि हम एक अलग रूम में चले जाए या अलग जगह चले जाए, वहां पे बैठे। क्यों? Why? I just want to know this from you. Can you please unmute yourself and tell me that why should we remain centered? क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बोले आप कि किसी को देख के गुस्सा आता है, तो वो देख देख के और डेवलप हो जाएगा। ओके, तो नेहा जी को लगता है कि सामने वाला सामने है, तो उसको देखेंगे तो बार बार गुस्सा आएगा, तो अलग हो जाना ही बेटर, मतलब अलग जाना ही बेटर है। Try to balance ourselves. ओके, ऐसा क्या जरूरी है कि मतलब अकेले हो जाए? क्योंकि जैसे मैंने मेरी सिचुएशंस में देखा है कि अगर मैं अकेले हूँ और अगर मुझे, मेरे पास कोई नहीं बैठा है जिसके ऊपर मेरे को गुस्सा, उससे अलावा,
तो मेरा एंगर और बढ़ता है और सम टाइम मैं अपने आप को भी हार्म कर लेती हूँ। Yeah, ऐसी absolutely. तो यहाँ, yes, Rishita, you want to say something? Yes, sir. Sir, as we have learning from 7:30 that the source of our anger is us, and on which we are projecting our emotion, they are the screen. If we centered ourselves in a certain room or we just isolate ourselves, we will not get the screen where we can project our emotion. So that's the reason. Absolutely. बहुत अच्छा आंसर, आई वुड से ऋषिता ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि जब हम बोल रहे हैं कि भाई सोर्स मैं हूं, तो स्क्रीन के साथ बैठ के कुछ नहीं कर सकता। आई शुड रिमेन सेंटर्ड, ताकि मैं अपने सोर्स के पास जाके देखूं कि भाई ये गुस्सा मैं क्यों हुआ, अपने सोर्स के पास, क्योंकि उस सोर्स के पास जाने का और कोई समय नहीं है। जिस वक्त आप गुस्सा हो, दैट इज द राइट टाइम यू कैन गो टू द सोर्स। अभी मैं बोलूंगा कि जाओ अपने गुस्से के पास जाओ, यू कैन नॉट गो बिकॉज यू आर नॉट फ्यूरियस और यू आर नॉट एंग्री। जब आप एंग्री होते हो, दैट इज द राइट टाइम दैट आप अपने को अलग करके सोचो कि ये गुस्सा आप क्यों हुए, कैसे आ गए, कैसे आप गुस्सा हो गए। इसीलिए रिमेन सेंटर्ड होने बोल रहा था कि आप दूसरे को नहीं, आप अपने को देख सको। You can go to your inside and you can find out that source, because source तो आप हो। बार बार हम यही बता रहे हैं, source is you only. Remember that you are the source. बार बार एक ही चीज है, ये चीज अगर आप जान गए भाई सोर्स मैं हूं, तो मैं क्यों एंग्री हूं। Do not move to the other. दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। Move to the source. अपने सोर्स के पास जाओ, अपने सोर्स, अपने पास जाओ, अपने दिमाग के पास जाओ, अपने दिमाग में घुस के देखो भाई वहां फ्रॉम वेयर इट हैज कम। When you feel hate, do not go to the object. Go to the point from where the hate is coming. Go not to the person to whom it is going, but to the center from where it is coming. So when you are angry, don't go to the person on object. वो object के पास मत जाओ. You go to the center जहां से ये आ रहा है. When you go to your own center, you will realize that अरे भाई मैं क्यों एंगर हो रहा हूँ, ये एंगर तो मेरा है। I can take this situation lightly also. ठीक है, मैं उसे पसंद नहीं करता, ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहा है, इस गुस्से से उसको थोड़ी फर्क पड़ रहा है, इस गुस्से से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी जो मेंटल सेटअप है वो गड़बड़ हो रही है, उसका कुछ नहीं जा रहा है, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। आप जिस पे गुस्सा कर रहे हो उसका कुछ नहीं जाएगा। इट विल हैम्पर योर मेंटलिटी। आपके आपके बाल झड़ेंगे। आप लोग अगर बाथरूम में जाओगे, वहां पे आपके सारे बाल गिरे पड़े रहेंगे। एंगर से ऐसा होता है। यू विल हैव, आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, आपका जो घुटना है ना वो दर्द करेगा। आपको पता भी नहीं है कि गुस्से से घुटने भी दर्द करते हैं। वेरी फ्यू पीपल दे नो। when you feel sad, जब आप गुस्सा करते हो ना, तो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स है जिसको हम लोग कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, वो सिक्रीट होता है और आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज करता है। हो जाओ भाई, गुस्सा हो, क्या उस सामने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है। आप सोचो, जब आप गुस्सा होते हो तो आपके दिमाग के अंदर ना एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको डोपामीन बोलते हैं। डोपामीन कभी सर्च करना गूगल में। डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, आप गुस्सा करोगे, आप बहुत जल्दी, आपको एक दिमागी बीमारी आ जाएगा जिसको हम लोग जैसे पार्किंसन डिजीज। आप लोग पार्किंसन डिजीज जानते हो कि नहीं पता नहीं। आपके हाथ हिलने लगेंगे, आप कोई चीज पकड़ नहीं पाओगे। तो सोचिए क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मैं किसी को लाइक नहीं करता, ठीक है, दैट इज फाइन। गुस्सा होने की जरूरत क्या है। Why you are angry? What are you getting being angry? ऐसे हमारे बहुत सारे केमिकल्स है, जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये सब हमारे दिमाग के अंदर है। इसका जो एक लेवल है ना, वो लेवल नीचे आ जाता है जब आप गुस्सा करते हो, या when you feel negative, the levels goes down। तो जब तो कोई पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए ना गुस्सा होने का। So there is no any positive point।
Move to the center, go within. Use your hate or love or anger or anything as a journey towards your inner center to the source. So अपने गुस्से को उस सोर्स तक जाने के लिए काम में लाइए. उस जो गुस्सा आप कर रहे हो ना उस समय that is the right time जब आप अपने को अलग रख के you can think that why I am being angry, why I am being angry. That is the right time. और दूसरे टाइम में आप उस सोर्स तक जा ही नहीं पाओगे. This is very important. Move to the source and remain centered there. उस सोर्स तक जाओ और वहीं पे बैठे रहो कुछ देर. Try it. This is very scientific and psychological technique. जब नेक्स्ट टाइम गुस्सा हो अपने को बोलो यार क्लास में तो पढ़ा ही था, सोर्स मैं हूं, फिर गुस्सा करके क्या फायदा. ओके आई डोंट लाइक समवन, ठीक है हो गया, आई डोंट लाइक, मैं उससे बात नहीं करूंगा. गुस्सा क्यों करूंगा? बात ये है आई विल नॉट टॉक टू दैट पर्सन. चलो मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा. गुस्सा क्यों करूंगा? व्हाई आई एम बिकमिंग एंग्री? दैट इज द क्वेश्चन. एंग्री जब होगे तो आपकी मेंटल स्टेटस इधर उधर हो जाएगी. समवन हैज इंसल्टेड यू, आपको किसी ने इंसल्ट किया. एंगर सडनली इरप्ट्स. आप एंग्री हो गए कि मुझे वो कैसे बोल सकता है ऐसा. Anger is flowing towards the person who has insulted you. आप तभी उसको एंग्री कुछ बोलने जा रहे हो. अब उसको आप एंगर हो के उसके ऊपर आप हो सकता है कुछ भी कर सकते हो. आप उसको मार सकते हो, आप उसको इफेक्ट कर सकते हो. बट उसने तो कुछ किया ही नहीं. उसने तो कुछ किया ही नहीं. हाँ उसने क्या किया? She has insulted you. What she has done? उसने इंसल्ट किया, राइट? तो उसने आपको ये नहीं बोला कि गुस्सा हो जाओ. उसने आपको इंसल्ट किया तो उसने जस्ट आपको प्रिक्ट किया, आपको जस्ट प्रिक किया, चुभाया एक चीज. शी हैज हेल्प्ड योर एंगर टू अराइज. उसने आपके गुस्से को तो बोलते हैं ना आग में तेल का काम किया. बट आग तो आपका है भाई, उसने तेल दिया होगा बट आग तो आपके अंदर है, इसीलिए तो आप जल गए. बात है बार बार हम लोग एक ही चीज बोल रहे हैं. शी हैज हेल्प्ड योर एंगर टू अराइज बट एंगर इज योर्स. गुस्सा तो आपका है. उसने बस एक रीजन दे दिया कि गुस्सा हो जाओ और आप गुस्सा हो गए. उसने जो चाहा था आपने वही किया. वो चाहता था कि यू नो आप गुस्सा हो जाओ और आप गुस्सा हो गए. थिंक अबाउट इट. एक बात बताइए, गौतम बुद्धा तो आप जानते होंगे. गौतम बुद्धा, सपोज आज गौतम बुद्धा जी अगर जिंदा होते, आप गौतम बुद्धा जी के पास जाते, उसको इंसल्ट करते, तो वो क्या करते? वो एंग्री होते? नहीं होते ना. नहीं होते. अगर आप जीसस क्राइस्ट के पास जाओ, अगर वो सच में है, अगर आप बिलीव करते हो, उनके पास जाओगे, उनको आप अगर एंग्री, उनको आप कुछ इंसल्ट करोगे तो क्या जीसस भी आपको आशीर्वाद ही देंगे और कुछ नहीं करेंगे. इफ यू गो टू बौद्ध धर्मा, वो तो और हंस देगा. आप उसको कुछ बोलोगे वो और हंसेगा. सो इट डिपेंड्स, राइट? इट डिपेंड्स. सो एंगर आपके अंदर अगर है तो वो निकलेगा. The other is not the source. The source is always within you. The other is hitting the source. वो अदर जैसे एक हिट कर रहा है आपको. आप जैसे हिट किया आपका दिमाग खराब हो गया. बट एंगर तो आपका है. उसने एक रीजन दे दिया बट एंगर तो आपका है. मैं ये बार बार बोल रहा हूं. आप एंग्री हो रहे हो सकता है उस जगह में कोई और एंग्री ना हो. तो एंगर का सोर्स आपका है तो आप भी संभालोगे ना भाई. उसको चेंज मत करो, खुद को संभालो, खुद के ऊपर वर्कआउट करो. एंड दैट इज द रीजन दिस इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स एंड दिस इज नॉट इजी एंड दैट इज द रीजन यू आर हियर. अगर इजी होता तो शायद आप लोग जान जाते, शायद सब लोग करते. इजी नहीं है इसीलिए तो वी आर प्रैक्टिसिंग हियर. इफ देयर इज नो एंगर विद इन यू इट कैन नॉट कम आउट. अगर आपके अंदर एंगर नहीं होगा तो वो निकलेगा ही नहीं.
If you hit a Buddha, only compassion will come out, because only compassion is there. Anger will not come out because anger is not there. आप गौतम बुद्धा को कुछ बोलोगे तो एंगर नहीं निकलेगा, उल्टा आशीर्वाद निकलेगा, क्योंकि आशीर्वाद ही है उनके अंदर, और कुछ नहीं है उनके अंदर। ओनली कंपैशन है। आप मदर टेरेसा को अगर कोई उल्टा सीधा बोले तो क्या लगता है, मदर टेरेसा उस समय गुस्सा हो जाती? नहीं, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा है ही नहीं, तो गुस्सा आएगा कहां से? गाइस, इट इज नॉट इजी। जितना इजी शायद मैं बोल रहा हूं या आप लोग सुन रहे हो, दिस इज रियली टफ। बट इफ यू प्रैक्टिस, जब भी गुस्सा हो बस अपने आप को ये बोल दो 1 सेकंड के अंदर, दैट आई एम द सोर्स, देन व्हाई आई एम बिकमिंग एंग्री। ओके, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, मैं उसको पसंद नहीं करता, फाइन, ठीक है, गुस्सा क्यों हूं मैं? गुस्सा होने का क्या जरूरत है? किसी को डिसलाइक करने के लिए क्या गुस्सा होना जरूरी है? नहीं। मैं किसी को पसंद नहीं करता, मैं बात नहीं करूंगा, मैं नहीं मिलूंगा, गुस्सा क्यों करूंगा? द थिंग इज दैट व्हाई शुड आई बी एंग्री? ये एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छे से देखो इसको। इफ यू थ्रो अ बकेट इनटू अ ड्राई वेल, नथिंग कम्स आउट, राइट? आप एक ड्राई वेल, एक कुआं है, जो कुआं ड्राई है, उसमें कभी पानी था ही नहीं, वो पानी एकदम ड्राई है, मतलब वो कुआं एकदम ड्राई है, पानी नहीं है। उसमें अगर आप पानी का बकेट डालोगे तो पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो कुआं ड्राई है। अच्छे समझिए, वो कुआं में कुछ है नहीं पानी, तो बकेट में पानी तो नहीं निकलेगा। इन अ वाटर फिल्ड वेल यू थ्रो अ बकेट एंड वाटर कम्स आउट। अगर उस कोई भी कुएं में पानी होगा, आप बकेट डालोगे तो पानी निकलेगा, बट द वाटर इज फ्रॉम द वेल ओनली। मतलब कुएं में पानी रहेगा तो वो पानी बकेट में आएगा, अगर ड्राई होगा तो नहीं आएगा। द बकेट ओनली हेल्प्स टू ब्रिंग इट आउट। वो बकेट उस पानी को निकालने में हेल्प करता है। मैं वही बता रहा हूं आपको। आप अभी सोचो, आप कुएं के जगह आप खुद को रखो। कोई एक आपको बकेट दे रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको रीजन दे रहा है, तो वो उसका बकेट आपके दिमाग के कुएं में डाल रहा है। और अब एंगर आएगा कि नहीं? एंगर रहेगा तो बकेट से एंगर आएगा सामने वाले के ऊपर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप में एंगर है तो वो निकलेगा, अगर आप में एंगर ही नहीं है तो थोड़ी ना एंगर निकलेगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सो सर, एक ही चीज, एट दैट टाइम कोई इमोशन तो वर्क करेगा ना। जैसे कोई अगर एंगर दिलाने की बात है या आ रहा है कोई इमोशन, हाँ मान आएगा लीजिए, ना, इमोशन आएगा, यार आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई विल नॉट टॉक टू हिम, ओके, हो गया। तो बस उतना ही है। हाँ, गुस्सा क्यों? मतलब गुस्से से आपको अगर कोई फायदा है तो कह सकते हैं, बट गुस्से से आपको नहीं लगता कि आप इतने ब्यूटीफुल हैं, आप गुस्सा करोगे तो आप कितनी अगली हो जाओगे? आप ना, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। आप लोग इतने स्मार्ट हैंडसम हो, आप लोग गुस्सा दिलाओगे तो गुस्से में आपका कभी थोबड़ा देखिएगा आईने में देखे ना, इट विल लुक सो अगली, यू विल नॉट लुक सो गुड। आप सोचो, आपने इस थोबड़े में कभी एंगर शायद देखा नहीं होगा। मैं अगर कभी कभी कोई डिस्टर्ब भी होता है तो मैं अच्छे से बोलता हूँ, देखिए आप लोग अगर ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो मैं निकाल दूंगा, बस। उसके लिए गुस्सा होने का क्या जरूरत है? मेरे लिए क्या है, एक बटन दबाऊंगा वो इंसान चला जाएगा, उसके लिए मुझे गुस्सा होने का क्या जरूरत है? मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को जो करना है करना है, मेरे को गुस्सा होने का क्या जरूरत है? इफ समथिंग इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, वाई शुड आई बी? तो मैं ये बोल रहा, हाँ गुस्सा आ सकता है, मैं सोचा नहीं, अचानक से मुझे अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आया, बट उसी समय मैंने खुद को समझाया कि अरे किसी ने अपना बकेट फेंका है यहाँ अंदर, पानी नहीं लेने दूंगा उसको, मतलब गुस्सा नहीं होऊंगा मैं, दैट इज फाइन। मुझे जो करना है मैं करूंगा, गुस्से से नहीं करूंगा, दिमाग लॉजिकली यूज करूंगा कि मुझे क्या करना है। गुस्सा करूंगा तो मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। कोई भी डिसीजन आप गुस्से से नहीं ले सकते, एक राइट डिसीजन। जब गुस्से से कोई डिवोर्स होता है ना, तो बच्चे में ना बहुत बुरा असर पड़ता है। जब गुस्से से डिवोर्स होता है, डिवोर्स ना म्यूचुअली भी होता है, ऐसे भी डिवोर्स है कि हस्बैंड वाइफ अलग है और बच्चा भी खुश है,
बच्चा जब चाहे माँ के साथ रहता है, बच्चा जब चाहे पापा के साथ रहता है, क्योंकि गुस्सा नहीं है वहां पे। और उस सिचुएशन में देखा जाता है कि बच्चे के अंदर उस डिवोर्स का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि पापा मम्मी कभी उस बच्चे को फील ही नहीं होने देते। जब बच्चा जाता है माँ के पास, माँ बोलती है तुम्हारा पापा अच्छे हैं। और जब बच्चा पापा के पास जाता है, पापा बोलता है तुम्हारी मम्मी अच्छी है। गुस्सा नहीं देते वो लोग। इसीलिए ना बच्चे को उस डिवोर्स से कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी डिवोर्स है जिसमें पापा बोलते हैं मम्मी खराब है, और मम्मी बोलती है पापा खराब है। अरे डिवोर्स छोड़ दो, ऐसा भी रिलेशन है जो साथ साथ हस्बैंड वाइफ रहते हैं और बच्चे को बोला जाता है तुम्हारी मम्मी खराब है, और मम्मी बोलती है तुम्हारे। डिवोर्स तो दूर की बात, मतलब एक नॉर्मल रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है। तो गाइज, डिवोर्स बुरा नहीं है। उस डिवोर्स को आप किस सिचुएशन में, हालात में ले रहे हो, वो तय करता है कि वो डिवोर्स खराब है कि नहीं है। डिवोर्स इज नॉट बैड। डिवोर्स तो एक एक्टिविटी है, मुझे कोई पसंद नहीं है तो बेटर है ना अलग हो जाए। डिवोर्स इज नॉट बैड। उस डिवोर्स को किस हालात में लिया गया, दैट इज बैड। एन इनसाइट: while I was young, I was very fascinated by boating. I had one small boat and I would go on the lake alone. जब मैं यंग था तो मैं बोट लेके निकल पड़ता था और बोटिंग करता था, लेक में आराम से बोटिंग करता था। घंटों घंटों मैं बोटिंग करता रहता था। एक दिन क्या हुआ, with closed eyes I was in the boat meditating on a beautiful night. मेरी आंखें बंद थी और मैं एक ब्यूटीफुल रात के बारे में सोच रहा था। मैं काफी पॉजिटिव था। मैं बोटिंग भी कर रहा था और सोच रहा था, कुछ ब्यूटीफुल इमेजिनेशन कर रहा था। तभी an empty boat came floating downstream and struck my boat. एक खाली बोट आया और मेरे बोट को पीछे से डैश करके डैश किया। एक खाली बोट आया और मेरे बोट को डैश किया। My eyes were closed, so I thought someone is here with this boat and he was struck my boat. Anger arose. मुझे लगा कि कोई है उस बोट में। मैं पीछे मुड़ के, मुझे काफी गुस्सा आया कि कैसे कोई मुझे धक्का दे सकता है। I opened my eyes and I was just going to say something. मैं उसको कुछ बोलने ही जा रहा था। Then I realized, oh no, the boat is empty. बोट तो खाली है। अब आप सोचो, जब आप देखोगे बोट खाली है तो आप क्या गाली दोगे बोट को? आप क्या गुस्सा करोगे क्या? थिंक अबाउट इट। देखो, एंग्री तो हुए ना आप, एंग्री आप तो हुए, आप तो गुस्सा आया, जनरेट किया, लेकिन जैसे ही खाली बोट देखा, मैनेज हो गया ना अपना गुस्सा। आपने बोल दिया ना अपने आप को, अब यार खाली बोट है, मैं भी ना यार क्या बोलूं, खाली बोट है ये, इट्स एन एम्प्टी बोट, इस पे गुस्सा दिखा के क्या फायदा। तो जब भी आपको कोई गुस्सा दिलाए, कुछ देर के लिए आप सोच ही लो ना, वो भी एक खाली बोट है, दिमाग में कुछ है नहीं उसका। वो आया, धक्का दिया, गुस्सा दिलाया, बट है तो वो खाली बोट, उस पे गुस्सा करके क्या फायदा। Then there was no way to move. To whom could I express my anger? The boat was empty. It was just floating downstream and it had come and stuck my boat. So there was nothing to do. There was no possibility to project the anger on an empty boat. उस खाली बोट में गुस्सा दिखा के कोई फायदा नहीं है। जस्ट वो एम्प्टी बोट आया, धक्का दिया, चला गया, उस पे गुस्सा होके कोई फायदा नहीं है। The empty boat became my realization. I came to a point within myself in that silent night. उस दिन वो बोट मेरे को बहुत बड़ा चीज सिखा के गया। वो एम्प्टी बोट, वो खाली बोट मुझे सिखा के गया, you know, if someone comes and insult me, I laugh and say, this boat is also empty. I close my eyes and go within. Try to think what I'm saying. नेक्स्ट टाइम जब कोई आएगा, मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, आई जस्ट थिंक यार दिस बोट इज ऑल्सो एम्प्टी। आपको ये कहानी याद आ जाना चाहिए उस समय। दिस बोट इज ऑल्सो एम्प्टी, इट हैज कम एंड स्टक मी, देयर इज नो वे आई शुड
be angry. Guys, throughout the talk, जो एक चीज था constant, वो था I am the source of my anger. I may not like you. हो सकता है कि आप मैं जो चाहता हूं आप वो नहीं कर रहे हो, या आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो, but it is fine. I don't decide to be angry. And why should I decide to be angry when I know that if I become angry, it will hurt my body, it will hurt my mind, it will hurt my life. लोग गुस्से से सुसाइड कर लेते हैं, लोग गुस्से से किसी का कत्ल कर देते हैं. मुझे तो गुस्से का कोई पॉजिटिव साइड नहीं दिखता है. हाँ, आप लोग बोलोगे सर ये तो नॉर्मल है ना. आपके लिए नॉर्मल है, क्योंकि आपने सोच लिया है कि गुस्सा नॉर्मल है, तो आप इसको ट्राई नहीं करोगे कभी. कौन ट्राई करेगा जो आज रियलाइज कर रहा है सच में? वो 4 जन, मुझे पता नहीं वो 4 जन कौन है, आप में से कोई होगा. वो 4 जन शायद सोच रहे हैं कि नहीं, अब समझ में आया, लोगों को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने गुस्से को तो कंट्रोल कर सकता हूँ. करना क्या है, बस कोई आएगा मार देगा, जब मैं बोट समझ के खाली दिमाग सोच के भूल जाऊंगा. Sir, one example I want to give. Yeah, Chanda, tell me. One person told me that 2 parallel line, he gives on a board 2 parallel lines. Without touching them, how can we increase in any line? Yes. Without touching. But parallel line will never touch. Yeah. That time, after sometimes we are 4 or 5 teachers were on that stage. After sometimes that person took a chalk and just one line, he touch one line and just grow, and he just seeing us that you can help yourself only. Absolutely right. This example. So guys, this is what, today we have learned that being angry is your choice. Being angry is your choice. It's not a chance. आप एंगर होते हो क्योंकि आप में गुस्सा है. आप ही सोचो ना, अगर मैं किसी को गाली देता हूं और आप सपोज मैं आपको, मैंने एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूं, मैं आपको गाली दे रहा हूं, आप गाली समझ रहे हो ना भाई, इसका मतलब वो गाली आपके अंदर है. ठीक है, तो अगर गाली आपके अंदर नहीं होता तो आपको मेरी गाली नहीं लगती. तो जो भी आज अगर हम गुस्सा भी कर रहे हैं ना, बिकॉज दैट एंगर इज हियर, एंड हो सकता है कोई आके पोक कर रहा है, मुझे प्रिक कर रहा है कि मैं गुस्सा हो जाऊं, बट द डिसीजन स्टिल लाइज इन मी दैट वेदर आई विल बी एंग्री और नॉट. एंगर अगर मुझे किसी को दिखाना है वो मैं दिखा सकता हूं, बट एंग्री होकर नहीं. कूल रहकर भी मैं एंगर दिखा सकता हूं, वो एक्टिंग हो या जो भी हो. लेकिन एंग्री जब होते हैं ना हम लोग, तब वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है. दैट एंगर कंट्रोल्स आवर माइंड. वो नहीं करने देंगे भाई. मैं अपने किसी को यहाँ पे बैठने नहीं दिया हूं. यहाँ पे सिर्फ मैं ही बैठा हूं. आई विल कंट्रोल माई लाइफ. I will not let the anger controls me.